تو ہم نے اپنی پریویس کلاس میں لیڈرشپ کو ڈیفائن کیا تھا، اور اس کے حوالے سے ڈفرینٹ ایکسپرٹس نے جو بولا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے جو ڈیفینیشن دی ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا. ڈفرینٹ ایک ایکسپرٹ نے ڈفرینٹ ویز میں لیڈرشپ کو ڈیفائن کیا، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ لیڈرشپ کوئی بھی کوالٹی اور اسکل ہے، اینی اسکل اور کوالٹی ٹو لیڈ. ٹھیک ہے، لیڈ کرنے کی جو کوالٹی ہے کسی بھی کام کو، کسی آرگنائزیشن کو، کسی انسٹیٹیوشن کو، وہ لیڈرشپ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر یہ پڑھا کہ مینیجریل ایکٹیویٹیز جو ہیں، مینیجریل رسپانسبلٹیز اور لیڈرشپ جو ہے، ان دونوں کو سم ٹائمز کنفیوز کر دیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. مینیجریل ایکٹیویٹیز جو ہیں یا مینیجریل جاب جو ہیں انہیں کو ہی لیڈرشپ کوالٹیز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان دونوں میں ڈفرینس ہے. مینیجریل الگ چیز ہے، لیڈرشپ ایک الگ چیز ہے. اس حوالے سے ایکسپرٹس نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر لائبریری سائنس کے حوالے سے لیڈرشپ کو جب ہم نے اینالائز کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ لائبریری سائنس میں لیڈرشپ کے حوالے سے خاطر خواہ کام نہیں ہوا، یا لائبریری سائنس کا جو لٹریچر ہے اس میں خاص طور پہ لیڈرشپ کے حوالے سے زیادہ کام ہمیں نہیں ملتا. کام ہوا ہے، یہ آرٹیکل جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ بھی لیڈرشپ کے حوالے سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ کے حوالے سے کام ہوا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوا. زیادہ ڈسکس لائبریری سائنس کے لٹریچر میں لائبریری سائنس کے حوالے سے لیڈرشپ کو ڈسکس نہیں کیا گیا. اسی طرح سے ہم نے پھر یہ بھی نوٹ کیا کہ لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی بارو کیا گیا ہے بزنس ورلڈ سے، اکنامکس کی دنیا سے، بزنس کی دنیا سے لیڈرشپ کا ورڈ بھی اور لیڈرشپ کا کانسیپٹ دوسری ہر فیلڈ کے لیے اور لائبریری سائنس کے لیے بھی وہاں سے بورو کیا گیا ہے. جس طرح مارکیٹنگ کا کانسیپٹ جب ہم لائبریری کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کے حوالے سے جتنے بھی کانسیپٹ ہیں وہ کانسیپٹ ایکچولی بزنس کی دنیا کے ہیں اور وہاں سے بورو کیے گئے ہیں لائبریری سائنس کے حوالے سے. سیم انہیں کو لائبریری سائنس میں کے فیلڈ میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو جب ہم لیڈرشپ کو پڑھتے ہیں تو لیڈرشپ میں بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی جو بھی کانسیپٹس ہیں، جو بھی آئیڈیاز ہیں وہ تمام بارو کیے گئے ہیں بزنس ورلڈ سے، کسی دوسری فیلڈ سے. لائبریری سائنس میں ان کو فٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی لیے جب ہم کوئی بھی کانسیپٹ، کوئی بھی آئیڈیا ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمیں چیلنجز کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے، اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون کون سے بیسٹ ایریاز ہیں جن کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور کون کون سی ویکنیسز ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کسی بھی کانسیپٹ کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ ہم خاص طور پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیلنجز ہیں جو لائبریرین شپ میں لیڈرشپ، ٹھیک ہے، لائبریرین شپ میں یا LIS کی فیلڈ میں لیڈر پروڈیوس کرنے کے حوالے سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جو وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے لیڈرشپ کی کوالٹی بہتر نہیں ہو سکتی یا لیڈرشپ کی کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خاص طور پہ ہم اس کو پاکستان کے حوالے سے اسٹڈی کر رہے ہیں. جب ہم پاکستان کو کے حوالے سے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں ہر فیلڈ کی طرح اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اور اب تک 70 ایئرس سے زیادہ ہو چکا ہے، اس دوران ہر فیلڈ میں نہ صرف لائبریری سائنس کے حوالے سے بلکہ ہر فیلڈ میں چیلنجز کا سامنا ہے، کیونکہ ہم اکنامیکلی اسٹیبل نہیں ہیں. انسٹیبلٹی کا سامنا، اکنامیکل انسٹیبلٹی کا، دین پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہمیں سامنا ہے. اس طرح سے دوسرے چیلنجز ہیں. اکنامیکلی ہم ویک ہیں، پولیٹیکلی ہم ویک ہیں کیونکہ ہمارے پاس کسی ایک ٹائپ آف گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی نہیں رہی ہے. ہم ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم، تو یہ دو بڑے فیکٹر ہیں، یہ دو بڑے چیلنجز ہیں، اکنامک فیکٹر اور پولیٹیکل فیکٹر، جس کی وجہ سے ہر فیلڈ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کا وہ لیول، وہ کوالٹی ہم نہیں اچیو کر سکے جو نیڈڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لائبریری سائنس کے حوالے سے دوسرے جو کانسیپٹ ہیں، دوسرے جو فیلڈ ہیں اس میں بھی اسی یہ میجر جو چیلنجز ہیں یا پرابلمس ہیں یا بیریئرز ہیں وہ یہی دو ہیں. اور جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں ان دا فیلڈ آف لائبریری سائنس، لیڈر پروڈیوس کرنے کے حوالے سے، لیڈرشپ کو اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے، اس کی کوالٹی کو انہانس کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں
जो बेसिक चैलेंजेस मिलते हैं वो यही दो हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है एंड देन हमारे पास पॉलिटिकल फैक्टर है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी ही फाइट में बिजी हैं, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी के लिए बिजी हैं। तो जब पॉलिटिकली इंस्टेबल होगी कंडीशन किसी भी कंट्री में, किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे जो हमारे जो लीड करने वाले होंगे, जो हमारे हाउसेस में बैठे होंगे, वो दूसरी फील्ड पे उतना तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी जितनी भी फील्ड्स होंगी जिसमें एजुकेशन भी आती है, और एजुकेशन में दूसरे हमारे पास फील्ड्स आ जाती हैं। इसी तरह कल्चरल एक्टिविटीज के हवाले से, रिक्रिएशन के हवाले से, किसी भी हवाले से कोई भी फील्ड हो तो उसमें उतना वो एक्टिवली परफॉर्म नहीं किया जाता, उन पे तवज्जो नहीं दी जाती। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे पास लीडरशिप, लाइब्रेरी साइंस लीडरशिप के प्रोडक्शन के हवाले से भी है। ठीक है, एक लीडरशिप प्रोडक्शन के हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको मेंटेन करना और उसकी क्वालिटी को बेटर करना, ये भी एक चैलेंज है। और इन्हीं वजूहत की वजह से इसको भी हम इस पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इस आर्टिकल में एक लिस्ट दी गई है चैलेंजेस की। ठीक है, इसमें डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स से डेटा कलेक्ट किया गया, उस डेटा के मुताबिक एक लिस्ट प्रिपेयर की गई है चैलेंजेस की, जो कि लीडरशिप प्रोडक्शन के हवाले से हमें जिनका सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो टॉप ऑफ द लिस्ट चैलेंज है वो रिवाइवल ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, खासतौर पे पीएलए। ठीक है, हमारे पास पीएलए है, पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो किसी भी कंट्री में किसी जब फील्ड को हम तरक्की देना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उसमें एडवांसमेंट्स लाना चाहते हैं, तो वहाँ पे उस फील्ड के हवाले से जो की एसोसिएशन होती हैं उनका रोल बहुत ही वाइटल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले करना होता है। तो जब हम पाकिस्तान के हवाले से LIS की फील्ड देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एसोसिएशन है, खासतौर पे PLA, पाकिस्तान लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसने जो रोल प्ले करना था वो रोल उसकी तरफ से सामने नहीं आ पाया, क्योंकि जो एक्टिविटीज पीएलए ने परफॉर्म करनी थी वो एक्टिविटीज उन्होंने परफॉर्म उस अंदाज से नहीं की। अगर हम देखते हैं तो जिस तेजी से और जिस स्पीड से, जिस सीक्वेंस से एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, उस सीक्वेंस का तो लेक करती है पीएलए। तो पहला जो हमारा चैलेंज का सामना है लीडरशिप के हवाले से, जब कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन ही हमारे यहाँ एक्टिवली काम नहीं कर रही होगी, ठीक है, तो उस प्रोफेशन के हवाले से जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी हमारे पास क्रिएट नहीं हो पाएंगे। जब प्रोफेशनल्स उतनी क्वालिटी में क्रिएट नहीं होंगे तो उनमें से जो लीडर्स होंगे वो भी हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे जिस तरह से ज़रूरत होती है किसी भी कंट्री में। और खासतौर पर हमारे हम पाकिस्तान को डिस्कस करें तो इसके हवाले से पीएलए का जो रिवाइवल है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इस हवाले से ये रिवाइव इसको करना एक चैलेंज है LIS की फील्ड में लीडरशिप प्रोडक्शन के हवाले से। ठीक है, दूसरा जो है सेकंड नंबर पे जो चैलेंज आया है वो है लेक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट हमें क्या चाहिए होती है, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस, इन द फॉर्म ऑफ बजट है। ठीक है, गवर्नमेंट की सपोर्ट जो हमें चाहिए वो इन द फॉर्म ऑफ बजट है, तो वो भी लेक करती है। गवर्नमेंट की तरफ से जितना बजट चाहिए इस फील्ड के हवाले से उतना बजट हमें नहीं मिल रहा। तो बजट की कमी की वजह से जहाँ पे दूसरे एरियाज हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, उसी तरह से जो एरिया हमारा लीडरशिप का एरिया है, अंडरस्टूड है, हर एरिया अफेक्ट होता है। जब हमारे पास बजट कम होगा तो हमारी एक्टिविटीज उतनी क्वालिटी की नहीं होंगी, और उतना हमारे पास जो लीडरशिप है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो ह्यूमन पावर है, वो हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। तो ये बजट भी की रोल प्ले करता है। फिर है लेक ऑफ लीडरशिप ट्रेड्स। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज जो हमें चाहिए वो हमारे प्रोफेशनल्स में नहीं है। ठीक है, जो ट्रेड्स नीडेड हैं, जो ट्रेड्स लाजमी हैं हमारे लीडरशिप के हवाले से, वो हमारे प्रोफेशनल्स में उनकी भी कमी है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे इसको दिया गया है, तो इट मीन्स कि ये इम्पोर्टेंट चैलेंज है लीडरशिप के हवाले से। उसके बाद हम आ जाते हैं लर्निंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हमारे प्रोफेशनल्स में आईसीटी की जो टेक्नोलॉजी है, जो आईसीटी है, उसको अडॉप्ट करने के हवाले से, उसको लर्न करने के हवाले से, उसको सीखने के हवाले से जो एटीट्यूड नीडेड है उस एटीट्यूड की भी कमी है। हमारे प्रोफेशनल्स नहीं सीखना चाहते
ICT के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उनको अडॉप्ट नहीं करना चाहते, उसको सीखना नहीं चाहते, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लीडरशिप प्रोडक्शन के हवाले से। ठीक है, उसके बाद है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से हमने जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था क्लास में कि जब हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं प्रोफेशनली, तो उसमें एक तो हमने डिग्री हासिल की, ठीक है, जिस तरह से आप लोग इंशाल्लाह अभी आफ्टर 1 सेमेस्टर आप लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो एक तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक एजुकेशन है। उसके साथ साथ फिर जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और वर्कशॉप की जरूरत होती है, ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन की जरूरत होती है। तो वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन या ऑन जॉब ट्रेनिंग वर्कशॉप उनकी भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? Yes, ma'am. ओके, लेट्स कंटिन्यू। Ma'am, students के connect कर waiting में. जी बाबा अलाउ कौन पे गए? दे आर सो लेट। अटेंडेंस सिर्फ आप लोगों की होगी जिन्होंने ज्वाइन किया। ओके, देन हमारे पास है हमने देखा कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन लेक करती है हमारे यहाँ। देन हमारे पास आता है लेक ऑफ कोऑपरेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग और कोऑपरेशन जो है ये भी एक नेसेसरी चीज होती है। हमारा जो मेन मकसद होता है लाइब्रेरी का, वो हमारे यूजर सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करनी होती है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज तक, और वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एक लाइब्रेरी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एक्वायर करे। तो उसके मकसद के लिए कि यूजर को मैक्सिमम एक्सेस प्रोवाइड की जाए मैक्सिमम रिसोर्सेज तक, तो उसके लिए कोऑपरेशन और रिसोर्स शेयरिंग की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ कोऑपरेशन और रिसोर्स शेयरिंग के हवाले से भी जिन स्टेप्स की जरूरत है वो लेक करते हैं, उनकी कमी है। रिसोर्स शेयरिंग और कोऑपरेशन के हवाले से खातिर काम लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में हमें देखने को नहीं मिलता, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज कंसीडर किया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम आ जाते हैं सब स्टैंडर्ड प्रोफेशनल एजुकेशन। हमारे पास भी प्रोफेशनल एजुकेशन है LIS की फील्ड में, उसको भी हम एक स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं बोल सकते, बल्कि सब इस आर्टिकल के मुताबिक उसको सब स्टैंडर्ड प्रोफेशनल एजुकेशन बोला गया है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एजुकेशन की भी कमी है, तो ये भी एक चैलेंज है। देन मैनेजरियल इनकम्पिटेंसीज, मैनेजरियल जो क्वालिटीज की जरूरत है हमें, उनकी भी बहुत सख्त कमी है हमारे पास। लीडरशिप के हवाले से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, तो मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज जिनकी ज़रूरत है वो भी लेक करती हैं, वो भी उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की होनी चाहिए। देन है रिसर्च एंड स्कॉलरशिप। फिर हमारे पास हमारी फील्ड में रिसर्च वर्क हो रहा है, नो डाउट हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल का और जितना नंबर ऑफ रिसर्च, जितनी क्वांटिटी और जितनी क्वालिटी हमें रिक्वायर्ड है रिसर्च की हमारी फील्ड के हवाले से, जितना स्कॉलर्स हमें नीडेड है उस लेवल के और उतना नंबर एंड उतनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च हमारे यहाँ नहीं हो रही। तो रिसर्च का ना होना भी लीडरशिप के हवाले से एक चैलेंज ही साबित होता है, ठीक है। देन है मार्केटिंग ऑफ LIS। हमें लाइब्रेरी के प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करनी होती है LIS की फील्ड में, खासतौर पे हर फील्ड में अंडरस्टूड, हर फील्ड में जितना अगर आप उसको डेवलप करना चाहेंगे तो उसकी मार्केट करना, यानी उसके क्लाइंटेल को इन्फॉर्म करना अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। तो जब हम LIS की फील्ड में आते हैं तो यहाँ भी क्योंकि हमने अपने यूजर को सेटिस्फाई करना है और हमने अपनी लाइब्रेरी के जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनके यूजेज को मैक्सिमाइज करना है, तो इस मकसद के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मार्केट करने की ज़रूरत होती है अपनी प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को। अपने क्लाइंट जो हमारा यूज़र है, जो हमारा पैटर्न है, उसको इन्फॉर्म करने की ज़रूरत होती है अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड, ठीक है, विच आर प्रोवाइडेड बाय आवर लाइब्रेरी। तो LIS की फील्ड में मार्केटिंग को भी उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया जा रहा या प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं किया जा रहा लिटरेचर में, या हम इसको एजुकेशन में कोर्स में तो एडेड है, लेकिन प्रैक्टिकली मार्केटिंग पे काम नहीं हो रहा है LIS के फील्ड में। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, ये भी एक
हमारे पास चैलेंज सामने आता है लीडरशिप को प्रोड्यूस करने के हवाले से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पुअर अवेयरनेस एंड रिकग्निशन ऑफ लाइब्रेरी इम्पोर्टेंस, ठीक है। हमारे पास लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस के हवाले से जो अवेयरनेस चाहिए वो भी, उसका लेवल भी पुअर है, वो भी क्वालिटी की नहीं है, ठीक है। और जिस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए लाइब्रेरी के रोल के हवाले से, लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस के हवाले से, वो अवेयरनेस भी लेक करते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। देन है इंट्रोड्यूसिंग लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, जो लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए। हर फील्ड के लिए स्टैंडर्ड्स की नीड होती है, ठीक है। कुछ हमें स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हर फील्ड के हवाले से, जिनको फॉलो करके प्रोफेशनल अपना काम करें और अपने स्किल्स को इन्हांस करें, अपने ट्रेड्स को इन्हांस करें, डेवलप करें अपने आप को। वो स्टैंडर्ड्स भी लाइब्रेरी की फील्ड में जब हम देखते हैं तो हमें एक प्रॉपर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं मिलता, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैलेंज आता है इम्प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर फॉर लाइब्रेरियंस, ठीक है। लाइब्रेरियंस के लिए सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रॉपर है। लेक ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट, हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनमें प्रोफेशनल कमिटमेंट काम के लिहाज से जो चाहिए होती है, काम के लिए जो चाहिए होती है, जो लगन चाहिए होती है, वो लगन भी नहीं है हमारे यहाँ, उसकी भी कमी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो एक इसमें आता है कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पे अबूर हो, आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस पे कमांड हो, और उसके साथ साथ आप कम्युनिकेट करना जानते हो, आप यूजर की नीड्स को समझ सकें और आप अपनी जो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं वो यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकें, आप यूजर को अट्रैक्ट कर सकें, आपका जो भी क्लाइंटल है उसको आप ग्रैब कर सकें, उसके अटेंशन को। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारे प्रोफेशनल्स में लेक करती हैं, ये भी एक चैलेंज है लीडरशिप के हवाले से, लीडरशिप के प्रोडक्शन के हवाले से। देन आता है लेक ऑफ कंप्यूटर फैसिलिटीज, ठीक है। एक तो ये है कि हमारा प्रोफेशनल जो है वो आईसीटी लर्न नहीं करना चाहता, वो नॉलेज लेना नहीं चाहता, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और दूसरा ये है कि कंप्यूटर फैसिलिटीज जो नीडेड हैं वो प्रोवाइड भी नहीं की जाती, उनकी भी कमी है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है हमारे पास, और ये भी एक चैलेंज ही है कंप्यूटर फैसिलिटीज की कमी होना ना होना, ठीक है। एंड एक्सेस टू जर्नल, जो ऑनलाइन जर्नल्स हैं, ठीक है, उन तक एक्सेस नहीं प्रोवाइड की जाती। और इसी तरह जो ऑफलाइन है उनमें भी सब्सक्रिप्शन रेगुलर बेसिस पे, और ये सारे इश्यूज भी हमारे पास आते हैं। तो ये तमाम वो चैलेंजेस हैं लीडरशिप के हवाले से जिनका हमें सामना है लाइब्रेरी साइंस के हवाले से, पाकिस्तान में लीडरशिप की प्रोडक्शन के हवाले से, लीडरशिप को इंक्रीज करने के हवाले से, ठीक है। अब हम आते हैं इस आर्टिकल के मुताबिक एक हमें लिस्ट प्रोवाइड की गई है नीडेड स्किल्स की, जो स्किल्स चाहिए लीडरशिप के हवाले से हमें, ठीक है। तो उनमें आईसीटी लिटरेसी है ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। आईसीटी की जो स्किल्स नीडेड हैं वो प्रोड्यूस करना जरूरी है लाइब्रेरी प्रोफेशनल में। फिर है मैनेजमेंट के हवाले से मैनेजरियल स्किल्स को प्रोड्यूस करना इंतहाई जरूरी है। देन है कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में इंटरपर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स खासतौर पे आती हैं, तो वो स्किल्स भी हमें प्रोड्यूस करना, अपने अंदर लाना, स्किल्स पैदा करना, डेवलप करना, उसकी ज़रूरत है प्रोफेशनल्स को। देन लीडरशिप के हवाले से जो क्वालिटीज जो स्किल्स चाहिए उनको डेवलप करना। देन मार्केटिंग ऑफ एलआईएस, ठीक है, मार्केटिंग ऑफ एलआईएस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इसकी भी ज़रूरत है, ये स्किल्स भी नीडेड हैं जो मार्केट करने के हवाले से जो अहम है स्किल्स, उनको भी डेवलप करना चाहिए। इसके साथ साथ है ब्रॉड नॉलेज बेस्ड साउंड प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, हमें एक कंप्लीट एंड साउंड प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत है हमारे प्रोफेशनल्स में। देन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूइंग एजुकेशन का ट्रेंड होना चाहिए, कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप वगैरह होनी चाहिए हमारी फील्ड के हवाले से। देन है प्रोफेशनल कमिटमेंट की ज़रूरत है, ये स्किल डेवलप करने की नीड है लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स में। देन है पब्लिक रिलेशन, सोशल एंड एथिकल वैल्यूज। पब्लिक रिलेशंस जो है जब हम मार्केटिंग के हवाले से पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें मालूम होता है कि मार्केटिंग के हवाले से भी पब्लिक रिलेशंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जब हम लीडरशिप के हवाले से आते हैं तो एक अच्छा लीडर
गुड पब्लिक रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो पब्लिक रिलेशन भी लीडरशिप के हवाले से एक स्किल्स एंड नीडेड स्किल है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। देन डेटाबेस सर्चिंग स्किल, बेसिक स्टेटिस्टिक्स और पंक्चुअलिटी वगैरह, ये तमाम स्किल्स हैं। रिसर्च मेथड्स हैं, एबल टू स्टडी यूजर नीड्स को स्टडी करने की एबिलिटी होनी चाहिए एक लीडर में। तो ये वो तमाम नीडेड स्किल्स हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल में। अगर ये तमाम स्किल्स डेवलप हो जाएं तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है, ठीक है। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आ सकती हैं। अब उसके साथ साथ हम आ जाते हैं कुछ लीडरशिप ट्रेड चाहिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ कि स्किल्स और ट्रेड्स में डिफरेंस ये होता है कि ट्रेड्स इनबिल्ट होती हैं, ठीक है। नेचुरली जो क्वालिटीज एक लीडर में या किसी भी बंदे में जब होती हैं तो उसको हम ट्रेड बोलते हैं, नेचुरल क्वालिटीज को, जो बाय बर्थ किसी में होती हैं। और स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप की जा सकती हैं, ठीक है। फॉर सपोज राइटिंग स्किल्स हो गई, ये इस तरह से जो स्किल्स हैं वो डेवलप की जा सकती हैं। और ट्रेड्स जो होते हैं इनबिल्ट होते हैं, नेचुरली आपके पास बाय बर्थ आपके पास जो क्वालिटीज होती हैं वो ट्रेड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो कुछ नीडेड ट्रेड्स हैं लीडरशिप के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से, आईसीटी और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, पर्सनल। तो हम लीडरशिप के हवाले से पहले पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ट्रेड्स हैं जो एक लीडर में होना, अगर हो किसी बंदे में तो वो एक अच्छा लीडर हो सकता है, ठीक है। इसमें इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, इमेजिनेटिव हो, विजनरी हो, कमिटेड प्रोफेशनल हो, और उसमें टाइमली डिसीजन लेने की पावर हो, ठीक है। और उसके साथ साथ डेवलप टीम स्पिरिट हो, उसमें अडॉप्ट चेंज को, किसी चेंज को वो अच्छी तरह अडॉप्ट कर सकता हो, ओपन टू न्यू आइडियाज हो, ठीक है। आर्टिकुलेट रिजल्ट ओरिएंटेड हो, हाई प्रोफेशनल मोरल और सेल्फ कॉन्फिडेंस हैव क्रेडिबिलिटी, ठीक है। ये तमाम वो नेचुरल क्वालिटीज हैं जो किसी अगर बंदे में हो तो वो एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। और अगर ये तमाम क्वालिटी किसी लाइब्रेरी LIS प्रोफेशनल में हो तो वो LIS की फील्ड में एक अच्छा लीडर बन सकता है इन तमाम क्वालिटीज के साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ साथ फिर हम अगर मैनेजमेंट के हवाले से देखते हैं तो मैनेजमेंट के हवाले से कौन कौन सी नेचुरल क्वालिटीज हैं जो किसी मैनेजर में होनी चाहिए, वो है गुड फाइनेंस मैनेजर, गुड टाइम मैनेजमेंट उसमें होनी चाहिए, देन अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, फ्यूचर पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग स्किल्स होनी चाहिए, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, ये एक मैनेजर के लिए नीडेड स्किल्स हैं। तो फिर इसी तरह आईसीटी के हवाले से अलग से हैं, और पर्सनल ट्रेड्स अलग हैं। नॉलेज एरियाज हैं जो जिनमें हमारे पास क्वालिटीज होनी चाहिए, वो है साउंड प्रोफेशनल नॉलेज, अदर एकेडमिक डिसिप्लिन, स्कॉलरशिप, गुड जनरल नॉलेज, रिसर्च एक्सेट्रा। तो ये तमाम नेचुरल क्वालिटीज हैं जो अगर एक लीडर में होंगी, एक इंसान में, एक प्रोफेशनल में होंगी और LIS प्रोफेशनल में होंगी तो वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। ये वो तमाम ट्रेड्स हैं, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल के मुताबिक हमने आज कंप्लीट किया कि कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है लीडरशिप के हवाले से, लीडरशिप प्रोडक्शन के हवाले से, लीडर्स प्रोड्यूस करने के हवाले से हमारी LIS की फील्ड में, और उसके साथ साथ हमने नीडेड स्किल्स पढ़ी कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी नीड है हमें, ताकि एक प्रोफेशनल उन स्किल्स को अडॉप्ट करे और एक अच्छा लीडर बन सके। और उसके साथ साथ हमने कुछ ट्रेड्स पढ़े जो लीडरशिप के हवाले से नीडेड हैं, अगर वो ट्रेड्स किसी प्रोफेशनल में हैं और वो उनको पॉलिश करता है तो एक अच्छा लीडर बन सकता है LIS की फील्ड के हवाले से, ठीक है। एनी क्वेश्चन?